rank lower in the. We do, but it's not everything. I know there's a fascination with power and six hitting, but there's also a couple of teams doing well with good craft. And I'd be very sad if the day came to us just being like a baseball competition and talking about sixes and fours. The beauty of the game is there's still balance between bat and ball, and in some cases there's not. So I'm loath to get into it too much. I love the skill and the ability to do that. It's phenomenal from an athlete point of view, but from the good of the game, balance is still really important. Our game in Chennai, the last game was tricky. They hit 2 or 3 when they were batting second innings, but for our boys, whether it's a lack of confidence or intent, it's not that easy. So it's not just a lay down misère that you can turn up and just hit sixes. Some players are playing absolutely fearlessly, and whether that's inconsistent or consistent, the tournament will tell. But conditions play a big part, but there's still room for craft, and you're still seeing top class players playing pivotal innings when it's not flat like a road. And I just hope the balance can remain, because while it's great to watch and the skill set we admire, the game is still about a balance between bat and ball. Sir, is Shivam Dubey fine? Because last game he went down before the last ball of the innings. Yeah, we were a bit worried, but I think it was a little bit of cramp. So he travelled well and he looks to be moving okay. So we're hopeful that that won't be another injury. Yeah, hi. You guys have a SAEC receipt like young players. So is there any chance in future to play future matches? I'm sorry, I missed that. You guys have SAEC receipt like players, young players. So is there any chance in the tournament you guys can use them? Yep. Yeah, certainly everyone's into consideration. You would have to say the plans we started out with have turned 90 degrees in direction, maybe 180. So we're looking at all possibilities, and we're not averse to that at all. Thank you. Stephen, how you consider the form of Nicholas Puran? Is that threatening for Chennai Super King? Yeah, it's very threatening. I think he's the best player in the world at the moment by some distance. He is consistent, he is powerful, and he's a real threat. And you can't say anything otherwise. To get him out and get him cheaply will be a big part of winning the game tomorrow. So there will be a fair bit of attention on how to shut him down and also how to get him out. But he's playing very well. नमस्कार, एक बार फिर हम लोग एकाना स्टेडियम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच के लिए मैच के पूर्व संध्या पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैच के बारे में चर्चा करेंगे। कल मैच किस टाइप का होने वाला है, कौन से प्लेयर पे सबकी नज़र रहेगी। फिलहाल तो ये है कि यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। अभी बहुत तगड़ी आंधी आई, शायद कल इससे बड़ी आंधी आए अगर सारे प्लेयर फॉर्म में रहे तो। लेकिन चेन्नई का अभी जो हिसाब किताब देखा गया है वो बहुत ही बुरा हाल है। अभी तक वो चेन्नई सोचा नहीं जा सकता था कि पदक तालिका में 10वें नंबर पर होगी। इस समय वो 10वें नंबर पर है। तो सबसे पहले सारी बातें करने से पहले चेन्नई पर ही आते हैं कि चेन्नई का परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों। तो हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं युवा पत्रकार अब्बास जी खेल मामलों के अच्छे जानकार हैं। तो अब्बास जी से समझेंगे कि चेन्नई की परफॉर्मेंस के बारे में, कि चेन्नई इतना खराब परफॉर्म कैसे कर रही है, जो कि उम्मीद नहीं थी उसकी। तो अब्बास जी, देखिए चेन्नई का जो परफॉर्मेंस की बात है तो मोराल उसका शुरू से ही डाउन चल रहा है जी। और अभी तक उसने जो भी मैच खेले उसमें सिर्फ एक मैच उनको जीत मिली है, बाकी में वो हार का सामना कर रहे हैं। और दूसरी बात कि उनके जो कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़, वो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म थे और चोट की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। धोनी को कमान दी गई है। धोनी एक अनुभवी खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन धोनी में भी अब वो चार्म नजर नहीं आ रहा जो उनकी फॉर्म होती है। खासतौर पर आप 40 के पार जब उम्र का असर तो दिख रहा है, तो रिफ्लेक्शन कम हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि धोनी भी उस मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो लास्ट के ओवर में उतरते हैं और 1-2 छक्के मारते हैं और थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। बिल्कुल वो एक टीआरपी मटेरियल हो सकते हैं। बिल्कुल टीआरपी के ही लिए अभी चेन्नई की टीआरपी मटेरियल हो सकते हैं। सिर्फ एक धोनी ही एक खिलाड़ी है जो इस हिसाब से रखा जा रहा है। बिल्कुल। तो
कल के मैच में जो है चेन्नई की तरफ से आपको क्या लगता है कि कल के मैच में चेन्नई की तरफ क्या बदलाव ऐसे हों जिससे चेन्नई की परफॉर्मेंस, क्योंकि लखनऊ में चेन्नई और मुंबई के मैचेस को लेकर हमेशा बहुत ही जोश रहता है। लखनऊ मैं तो वैसे लखनऊ की टीम का समर्थन करता हूं एक तरीके से, सारी टीमें अच्छी लगती है, लेकिन हम चूंकि लखनऊ से हैं, लखनऊ की टीम की समर्थन करते हैं। और लेकिन हमने यहाँ के लोगों में देखा है कि जब चेन्नई का मैच होता है, जब मुंबई का मैच होता है, तो लोगों में ज्यादा उत्साह होता है। कभी आप अगर कल देखेंगे तो हो सकता है कल आपको यहाँ जो है मैदान पीले रंग का रंगा हुआ लगभग दिखाई देगा, काफी लोग पीली टी शर्ट में होंगे, ठीक है। तो चेन्नई ऐसा क्या करे कि कल लोग यहाँ के निराश ना हो, ऐसा उन्हें कहाँ पर इस समय जरूरी है कि किस फील्ड में उनको जरूरी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, देखिए क्या बदलाव चेन्नई करें? की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो चल नहीं रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ के जाने के बाद तो और ही उनका बैटिंग ऑर्डर एकदम कमजोर हो गया है। शिवम दुबे एक उम्मीद थे जी। और उनके बारे में भी प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस में आ रहा है कहा कि इंजर्ड हो रहा है, इंजर्ड है डाउटफुल है फिलहाल, उनके खेलने को क्रैम्पिंग लेकर, वगैरह है क्रैम्पिंग वगैरह है। तो बैटिंग कहीं ना कहीं इनकी कोलैप्स हो रही है और बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करने के लिए उनके पास किसी जमाने में सुरेश रैना हुआ करते थे, बिल्कुल। ब्रावो हुआ करते थे, मोइन अली हुआ करते थे। तो जो एक चेन्नई का खौफ होता था वो हाँ, अब इस हाँ, टीम में नजर नहीं आ रहा है। धोनी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और एक नाम जो न्यूजीलैंड के रविंदर करके जो प्लेयर है, रविंद्र सचिन करके, रविंद्र रचिन, हाँ रविंद्र रचित, वो पहले मैच में चले, काफी अच्छा चले, शायद उस मैच में चेन्नई को इकलौती जीत भी मिली, लेकिन उसके बाद से वो भी फ्लॉप है। तो मुझे लगता है कि कल के मुकाबले में रविंद्र सचिन का चलना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो चलते हैं तो फिर एक मोमेंटम मिल जाएगा चेन्नई को, क्योंकि इसके बाद शिवम दुबे का शायद हो सकता है अगर वो 70% भी फिट रहते हैं तो कल जरूर खेलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुकाबला है। अगर कल चेन्नई हारती है निश्चित तौर पे प्ले ऑफ से उसका पत्ता कट जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि धोनी इस तरीके की सिचुएशन में रहे हैं, इससे पहले भी आखिरी पायदान से होते हुए फिर वो खिताब तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सीएसके पूरी तरह से चुक चुकी है और टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि धोनी के ही इर्द गिर्द पूरी टीम है। और कल के मुकाबले में मैंने जैसे कहा कि उनके सलामी बल्लेबाज अगर चलते हैं तो फिर नीचे से रविंद्र जडेजा आ जाएंगे और शिवम दुबे अगर खेलते हैं, धोनी को एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ सकती है। पिछले मैच में बहुत सारे फेरबदल किए गए, जिनको ऊपर भेजना चाहिए था उनको ऊपर ना भेज के नीचे भेजा गया, क्या उससे भी क्या मैच पे कुछ फर्क पड़ा है? हाँ। क्योंकि है क्या, देखिए पिछले मैच की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक इतना खराब प्रदर्शन चेन्नई की तरफ से कभी भी नहीं हुआ, और इस तरीके के बदलाव भी चेन्नई में जब और धोनी पिछली बार कप्तान थे, धोनी ने जब बदलाव किया है वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए, ठीक है। तो कल उनका बदलाव काम नहीं आया, जैसे कि उन्होंने अश्विन को ऊपर भेजा, ठीक है, वो काम नहीं आया। तो क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी उन्हें अपनानी चाहिए कल के लिए? मुझे लगता है कल धोनी को ऊपर आना होगा। धोनी को 4-5 ओवर के लिए उनको नहीं खेलना चाहिए कल। अगर वो टीम को लीड कर रहा है तो कल धोनी को 3 या 4 नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, ताकि वो एक तरीके से टीम को ले सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि कैपेबिलिटी तो है उनके अंदर। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, और वो घायल शेर हैं, कभी भी पलट के बाहर कर सकते हैं। लखनऊ की टीम पे आते हैं कि लखनऊ में अभी हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो पूरन उनके लिए एक थ्रेट बने हैं, और वो पूरन को लेकर सारी रणनीति बन सकती है कल के मुकाबले में। पूरन जिस फॉर्म में है, जिस लय में है, वो सिंगल हैंडेड एलएसजी को जिता रहे हैं। हाँ, तो एलएसजी तो खैर इस समय काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि बैटिंग उनकी धार पे है। पंत को पिछले बार कुछ प्रयास करते हुए देखा जरूर गया, लेकिन पंत अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ओपनिंग में आए लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कल के मुकाबले में पंत ओपनिंग करेंगे निश्चित तौर पे, और ये रहा है कि अगर कल पंत अगर ओपनिंग करते हैं और जिस तरीके का उनको स्टार्ट मिला था पिछले मैच में, उस स्टार्ट को यहाँ पे वो फिर से कंटिन्यू करते हैं तो वो भी फॉर्म हासिल कर सकते हैं। तो कल उम्मीद कर सकते हैं कि एक बढ़िया मैच होगा। बढ़िया मैच बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ वाले आशा कर रहे हैं कि कल बढ़िया मैच हो। चौथी जीत पर नजर होगी लखनऊ की। अगर चौथी जीत दर्ज करती तो वो टॉप 3 लखनऊ में लगातार चौथी जीत, बड़ी बात तो 5वीं जीत होगी। ये एक बड़ी बात होगी अगर वो टॉप 3 में आते हैं, तो आगे की राह उनकी आसान हो सकती है प्ले ऑफ के लिए। चेन्नई अपना मैदान में पसीना बहा रही है, और मुझे लगता है कि कल का मैच रोमांचक होना चाहिए। आपसे बात करने पे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और हम लोगों ने जब बातें करी और जो भी हम लोगों ने एक परसेप्शन दिए हैं, वो नेक्स्ट डे जैसे हम लोगों ने न्यूज में लगाया कि साई सुदर्शन या पूरन ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया,
कल भी उम्मीद करते हैं कि लखनऊ अच्छे परफॉर्म करेगी। तो कल लखनऊ वालों को एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि चेन्नई भी कुछ उभरेगी, लेकिन लखनऊ अभी भी मजबूत स्थिति में है। तो कल के मैच में फिर से मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार। आप सभी से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे कंटेंट में कहीं कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीएल के बारे में अच्छी अच्छी चीजें जो लखनऊ में हो रहा है वो उसके बारे में हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं हमेशा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज उसे शेयर करें ताकि और अधिक से अधिक लोगों में वो पहुंचे। नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर हम आपको मैच का अपडेट देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।